नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है औषधि चट्टानें अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स। इसे हम बीएससी पार्ट द्वितीय के सेकंड पेपर पेट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं। औषधि चट्टानें क्या होती है? पूर्व निर्मित सेलों के अनाच्छादन से प्राप्त पदार्थ के भौतिक, रासायनिक या जैविक विधियों से निक्षेपण होने पर औषधि सेलों की उत्पत्ति होती है। भू सतह पर अनावर्त सेलों का लगभग 75% भाग औषधि सेलों का है, यानी सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों में 75% सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती हैं। भूमि के अतीत में विभिन्न क्रियाओं से निर्मित सेलों के अनुक्रम में भी औषधि सेल प्रमुखतः पाए जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के भूमि के इतिहास को समझने के लिए इन चट्टानों का अध्ययन जरूरी है। The total amount of sedimentary rocks that exist in the upper 16 km of the earth crust is estimated to be only about 5%. These rocks are found chiefly as extensive cover over the continents. Sedimentary rocks are formed by consolidation and cementation of sediments deposited under water. यानी कि ये कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन से बनती है सेडिमेंट्स के। सेडिमेंट्री रॉक्स आल्सो इंक्लूड द रॉक्स फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकली प्रेसिपिटेटेड और ऑर्गेनिकली डेराइव्ड मटेरियल। सेडिमेंट्री रॉक्स अकर इन लेयर्स एंड फ्रीक्वेंटली कंटेन फॉसिल्स। अब हम औषधि सेलों की उत्पत्ति देखते हैं, इनकी फॉर्मेशन देखते हैं। The formation of sedimentary rocks takes place in 3 stages. पहली है weathering and erosion of pre-existing rocks, दूसरा है sedimentation, तीसरा है lithification and diagenesis. Weathering and erosion. During weathering and erosion, the pre-existing rocks and their constituent minerals are broken down. यानी weathering के द्वारा जो pre-existing minerals हैं वो टूट जाते हैं। The material thus produced is called sediment. इस प्रकार जो मटेरियल बनता है उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। The sediments are usually transported and deposited in area of accumulation by the action of water or less frequently by glacial or wind action. During transportation, the sediments are roughly sorted and deposited according to size. Bigger rock fragments such as gravel settle first, sand are next in order, and clays are deposited in the last. The minerals which are dissolved by water travel in solution. इसके बाद आता है sedimentation. Sedimentation क्या होता है? The process of accumulation of sediments at a site of deposition called sedimentation. जो accumulation of sediments है उसकी प्रक्रिया किसी निश्चित स्थान पर वो कहलाती है सेडिमेंटेशन, अवसादन। द मटेरियल कैरिड इन सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट्स एंड एक्यूमुलेट्स। सेडिमेंटेशन इज द इंटरमीडिएट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके पश्चात आता है लिथिफिकेशन एंड डाइजेनेसिस। लिथिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सॉफ्ट एंड लूज सेडिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू हार्ड एंड firm rocks. This process is also called consolidation. During this process, many physical and chemical changes takes place within the sediment. Such changes are called the diagenetic changes and the process is described as diagenesis. The diagenesis include 3 processes. पहला है compaction, दूसरा है cementation, तीसरा है recrystallization. कॉम्पैक्शन क्या होता है? कॉम्पैक्शन occurs when the weight of overlying layers compresses the sediments below. As the grains of sediments are pressed closer and closer together, there is considerable reduction in pore space and volume. Fine-grained sediments such as clays are consolidated more effectively by this process. इसके पश्चात आता है cementation. When water circulates through the force of coarse-grained sediment, dissolved mineral matter is precipitated between the grains, which cause cementation. The most common cementing materials are
silica, calcium carbonate, iron oxides, and clay minerals. The identification of the cementing material is a relatively simple matter. Calcite cement will effervesce with dilute hydrochloric acid, while iron oxide gives the rock a characteristic red, orange, or yellow color. Silica, the hardest of the cements, produce the hardest sedimentary rock. सिलिका सबसे हार्डेस्ट सीमेंट है, प्रोड्यूस्ड हार्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बाद आता है रिक्रिस्टलाइजेशन। Although most sedimentary rocks are lithified by compaction, cementation, or combination of both, some are consolidated by the recrystallization of their constituents. Chemically formed rocks such as limestone, dolomites, salt, and gypsum are the examples of consolidated by recrystallization. अवसादी सेलों की उत्पत्ति का हमने देखा है। अवसादन की क्रिया भू सतह पर निरंतर चल रही है। इस क्रिया के कार्यान्वयन को हम देख भी सकते हैं, इसलिए अन्य सेलों की अपेक्षा अवसादी सेलों की उत्पत्ति के विभिन्न पक्ष अधिक स्पष्ट हैं। अवसादी सेलों की उत्पत्ति निम्न प्रावस्था में होती है। पूर्व निर्मित सेलों का विघटन एवं अपघटन, अपक्षयजात पदार्थ का परिवहन, तीसरा है निक्षेपण, चौथा है अवसाद का अश्मीभवन एवं डायजेनेसिस यानी कि लिथिफिकेशन एंड डायजेनेसिस ऑफ सेडिमेंट्स। पूर्व निर्मित आग्नेय कायांतरित या अवसादी सेल अपक्षय के विभिन्न कारकों जल, वायु, ताप, दाब एवं जीवों द्वारा प्रभावित होते हैं। इनके प्रभाव में सेल भौतिक रूप से खंड खंड टूटने लगते हैं अर्थात विघटित होते हैं, डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं। शुष्क और उष्ण तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में मुख्यतः सेलों का विघटन होता है, जबकि आर्द्र जलवायु और उष्ण या शीतोष्ण क्षेत्रों में अपघटन अधिक प्रभावशील होता है। विघटन एवं अपघटन के सम्मिलित प्रयास में पूर्व निर्मित सेल निम्न तीन प्रमुख पदार्थों में विभाजित हो जाता है। पहला है रासायनिक रूप से अप्रभावित यानी कि अपरिवर्तित खनिज, दूसरा है अविलेय अवशिष्ट और तीसरा है विलेय पदार्थ। इन तीनों की तुलनात्मक मात्रा मूल सेल जलवायु तथा स्थलाकृति पर निर्भर करती है। विलेय पदार्थ तो शीघ्र ही वर्षा जल के साथ नदियों में विसर्जित हो जाता है। अप्रभावित खनिज और अविलेय अवशिष्ट बचा रहता है, जिसे कि डेब्रिज यानी मलबा कहते हैं। मलबा और विलेय पदार्थ ही अवसादों के स्रोत हैं। जल, वायु, हिमनद और गुरुत्व के प्रभाव में अपरद पदार्थ परिवहित होते हैं, आगे ये ट्रांसपोर्टेड होते रहते हैं। परिवहन की विधि और परिवहन के समय अपरद पर प्रभाव परिवहन के माध्यम और वेग पर निर्भर करता है। परिवहन और उसके अवसादों पर प्रभाव का विवरण भौतिक भूविज्ञान परिच्छेद के नदी, हिमनद, वायु इत्यादि से संबंधित अध्यायों में दिया गया है। परिवहन के समय अपरद छोटे छोटे कणों में विभाजित अधिक गोल और आकार एवं आकृति के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। ये प्रभाव माध्यम के श्यानता, गति और प्रावस्था पर निर्भर करते हैं। परिवहन माध्यम में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और जैविक कारणों से अपरद एवं घुले पदार्थों का निक्षेपण होता है। उदाहरणार्थ नदियों के वेग में परिवर्तन के साथ साथ नदभार, बाढ़ क्षेत्र, विसर्प, डेल्टा इत्यादि में निक्षेपित हो जाता है। अंततः नदियां समुद्र या झील में विसर्जित हो जाती हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद झील और समुद्र की विभिन्न स्थितियों एवं गहराइयों में एकत्र हो जाते हैं। इसी प्रकार विलयन के रूप में लाया गया पदार्थ अम्लीयता, क्षारीयता तथा आक्सीकरण अवकलन की स्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप अवक्षेपित होता है। बैक्टीरिया एवं अन्य जीव भी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में सहयोगी होकर अवक्षेपण को प्रेरित करते हैं। विभिन्न जीवों के कवच इत्यादि भी अवसाद के रूप में एकत्र हो जाते हैं। निक्षेपण के इन समस्त प्रक्रमों एवं उनमें निक्षेपित पदार्थ को निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं।
भौतिक परिवर्तन के कारण निक्षेपण, रासायनिक परिवर्तन के कारण निक्षेपण और जीवों द्वारा निक्षेपण, जिसमें बलकृत निक्षेप होते हैं, अपरदीय सेखंडाश्म निक्षेप होते हैं, रासायनिक में रासायनिक होते हैं और जीवों द्वारा जैविक निक्षेप बनते हैं, बायोजेनिक डिपॉजिट्स। प्रारंभ में निक्षेपित पदार्थ अदृढ़, असंहत और असंयोजित होता है। इस अवसाद संचय का दृढ़, संहत, संयोजित एवं कठोरीभूत अवसादी सेल में परिवर्तन अश्मीभवन का तात्पर्य अवसाद के संचय पर उसमें उपस्थित खनिजों तथा अंतराली द्रवों में होने वाली प्रतिक्रियाओं से है, जबकि अश्मीभवन नव निक्षेपित अवसाद के कठोरीभूत सेल में परिवर्तन की प्रक्रिया है। डायजेनेसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गम्बेल ने सन 1888 में किया। वस्तुतः डायजेनेसिस कम तापक्रम पर होने वाले कायांतरण का ही लघु रूप है। डायजेनेसिस प्रक्रम के अंतर्गत संयोजन, सीमेंटेशन, ऑर्थिजेनेसिस, डायजेनेटिक डिफरेंशिएशन एवं पृथक्करण, सेग्रीगेशन, डायजेनेटिक मेटासोमेटिज्म, अंतःस्तरीय विलयन, इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन एवं संहनन सम्मिलित है। संयोजन का तात्पर्य सेखंडाश्म अवसाद के रंध्रों एवं खाली स्थानों में कार्बोनेट, सिलिका, लौह इत्यादि खनिज पदार्थों का अवक्षेपण है। इससे अवसाद संयोजित एवं कठोरीभूत होते हैं। ऑर्थिजेनेसिस अवसाद में उपस्थित खनिजों की आपस में क्रिया से उत्पन्न नए खनिजों के पूर्ववर्ती के चारों ओर विकसित होने की क्रिया है। डायजेनेटिक विभेदन के कारण अल्प मात्रा में उपस्थित अवयवों का ग्रंथिकीय रूपों में पृथक्करण होता है। डायजेनेटिक मेटासोमेटिज्म में एक खनिज दूसरे खनिज द्वारा प्रतिस्थापित होता है। इन समस्त क्रियाओं में विभिन्न खनिज रंध्रों में खनिज विलयन बनते हैं, जिसे अंतःस्तरीय विलयन कहते हैं। संहनन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया द्वारा रंध्रों में स्थित अंतराली द्रव निचुड़कर बाहर आ जाता है और इस प्रकार अवसाद अवसादी सेल का रूप ले लेते हैं। अतः अवसादी सेलों की प्रकृति, मूल सेल, अपक्षय को प्रभावित करने वाली स्रोत क्षेत्र की विशेषताओं, परिवहन के माध्यम एवं वेग, निक्षेपण को निर्धारित करने वाले कारकों अर्थात वातावरण एवं अश्मीभवन की तीव्रता पर निर्भर है। अवसादी सेलों के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य इन्हीं स्थितियों का सही पता लगाना है। स्रोत क्षेत्र और मूल सेलों के अध्ययन को प्रोविनेंस, परिवहन और निक्षेपण की स्थितियों के अध्ययन को वातावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी, तथा संयोजन एवं अश्मीभवन की स्थितियों के अध्ययन को डायजेनेटिक वातावरण का अध्ययन कहते हैं। अब अवसादी सेलों का रासायनिक एवं खनिजात्मक संगठन देखते हैं। अवसादी सेलों का रासायनिक संगठन अत्यधिक परिवर्तनशील होने के कारण उनकी उत्पत्ति में निहित है। फिर भी अवसादी सेलों के औसत रासायनिक संगठन में सोडा की तुलना में पोटास, चूने की तुलना में मैग्नीशियम तथा फेरस आयन की अपेक्षा फेरिक आयन का प्रतिशत अधिक होता है। अवसादी सेलों का खनिजात्मक संगठन। अवसादी सेलों में दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक प्रकार के खनिज मूल सेलों में अपक्षय से प्राप्त परिवहन के बाद निक्षेपण स्थान तक आते हैं और अवसादी सेल में पाए जाते हैं। बलकृत रूप से प्राप्त इस प्रकार के खनिजों को अपरदी खनिज कहते हैं अर्थात डेट्राइटल मिनरल कहते हैं। इसका अन्य नाम है एलोजेनिक मिनरल, जिसे हिंदी में हम अन्यत्र जात खनिज कहते हैं। इसके विपरीत निक्षेपण स्थान पर ही रासायनिक अवक्षेपण या जैविक विधियों से उत्पन्न खनिज को तत्रजात अर्थात ऑर्थिजेनिक मिनरल कहते हैं। क्वार्ट्ज, जिरकॉन, इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, फेल्सपार इत्यादि अन्यत्र जात, हेलाइट, सिल्वाइट, कैल्साइट, पायराइट इत्यादि तत्रजात खनिजों के मुख्य उदाहरण हैं। अवसादी सेलों में पाए जाने वाले खनिज निम्न प्रकार हैं। अपरदी एवं बालुकामय अवसादों के सामान्य खनिज ये हैं एम्फीबोल, कैसिट्राइट, डोलोमाइट, ग्लाकोनाइट, मैग्नेटाइट, पायरोक्सिन, स्पिन, एपेटाइट, क्लोराइट, एपिडोट, हेमेटाइट, मोनाजाइट, क्वार्ट्ज, स्टेरोलाइट, बेराइट, जोइसाइट, फेल्सपार, इल्मेनाइट, मस्कोवाइट, रूटाइट, टोपाज, बायोटाइट, कॉर्डियराइट, फ्लोराइट, काइनाइट, ओलिविन, सिडेराइट, टूरमेलिन।
कैल्साइट, कोरंडम, गार्नेट, लिमोनाइट, ओपल, सिलिमेनाइट, जिरकॉन इत्यादि। रासायनिक अवसादों के प्रमुख खनिज ये हैं कैल्साइट, सिडेराइट, ग्लूकोनाइट, बेराइट, मृत्तिका खनिज, कैल्सेडोनी, क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, जिप्सम, फास्फेट इत्यादि। डोलोमाइट, हेलाइट, लिमोनाइट, मर्केसाइट, ओपाल, सिल्वाइट, कोलोवाइट, पाइराइट इत्यादि। बलकरत या अपरदि खनिजों के साधारण कार्बन, टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोफॉर्म से अधिक घनत्व वाले खनिजों को हैवी मिनरल यानी कि भारी खनिज कहते हैं। अपरदि खनिज स्रोत सेल स्रोत क्षेत्र की विवर्तनिक स्थिति एवं वहाँ की स्थलाकृति को समझने में उपयोगी है। तत्रजात खनिज निक्षेपण के रासायनिक वातावरण को समझने में सहायक होते हैं। मृत्तिका खनिज मूल सेल से भी प्राप्त होते हैं, तत्रजात भी हो सकते हैं, इसलिए इनकी भूविज्ञानिक व्याख्या जटिल है। इसके आगे के अध्याय में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स का, टेक्सचर भी देखेंगे। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का सामान्य अध्ययन हमने आज पढ़ा।